بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے تقریباً 4 دہائیاں قبل 6 جون 1984 کا وہ دن تھا جب سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا اور انڈین آرمی جس فاشزم کا اس نے مظاہرہ کیا کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر اس کی دیواروں کو توڑا گیا، ٹینکس اس کے اندر چلے گئے اور سکھوں کی وہ بے حرمتی کی گئی کہ جس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. تو یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا قصور تھا کہ گولڈن ٹیمپل کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا گیا؟ کیا قصور تھا سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والے اور ان کے ساتھیوں کا جس طریقے سے انہیں بہیمانہ طور پہ جو ہے وہ قتل کیا گیا؟ کیا قصور تھا جو ہے وہ ان عام سکھوں کا جنہیں مارا گیا اور اس کے بعد انہیں ڈھونڈ کر آج تک جو ہے وہ ان میں گمنام لوگ پائے جاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مسنگ پیپل جن کو کہا جاتا ہے، اور را نے ان کو اٹھایا، انڈین فورسز نے ان کو اٹھایا، اور جو بچ گئے وہ بچ نکلنے میں وہاں سے کامیاب ہو گئے. وہ باہر اس وقت بیٹھے ہیں اور وہ ایک ترس رہے ہیں اپنے وطن پہ واپس آنے کے لیے، اپنے وطن کو دوبارہ جوائن کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کو دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ صرف یہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دے دیں اور ہم یہ جو آپ ہمارے ساتھ پنجابی میں جسے کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ تکا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو آپ زبردستی کر رہے ہیں، زور کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے. کیا کوئی جمہوری ملک ایسے کرتا ہے اپنی ساتھ بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ؟ کیا اس طرح سے ان کے مذہبی مقدس مقامات کے اوپر فوجیں چڑھائی جاتی ہیں؟ اور یہ بھی یقیناً ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا سکھ ان تقریباً 40 برسوں کے اندر جو کچھ ہوا، جس طرح سے دلی فسادات ہوئے، جس طرح اس سے پہلے جب گولڈن ٹیمپل ہوتا ہے اور اس کے بعد سکھوں کو مارا جاتا ہے، کیا سکھ اس کو بھول پائیں گے؟ اور کیا جو سکھ ہیں ان کا جو انٹرنیشنل رائٹ ہے جسے اقوام متحدہ اپنی چارٹر کے ذریعے مانتا بھی ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ان کا بیسک رائٹ ہے، کیا سکھ اس کو بھی جو ہے وہ فورگو کر دیں گے؟ یہ سوالات ہوں گے آج کے اس پہلے موضوع میں جو ہم سامنے رکھیں گے اپنے پینلسٹ کے. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خالصہ گروچرن سنگھ صاحب اسکائپ کے ذریعے. بہت بہت شکریہ جناب گروچرن سنگھ صاحب، آپ سے ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ رائے لیں گے. مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں. امتیاز وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، APSC کے ترجمان ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. خالصہ جی تواڈی اجازت نال اس تو پہلا اسی سوال جواب دا آغاز کریے. اسی سب تو پہلا ایک رپورٹ شامل کر لیندے ہاں تاکہ تھوڑا جا اتہاس ہی جو کچھ ہویا ساڑھے ناظرین نو پتہ لگ سکے. میں شریر دے مرن نو موت نہیں گندا، ضمیر دے مرن نو موت گندا. سکھ دی موت ادو ہوندی ہے جدوں اپنی ضمیر نو بی بی اندرا دی چپلی دے تھلے لا کے تے داڑا رکھ کے کہہ رہے سکھ قوم نے میں سمجھدا او منکھ مریا. ہندوستان کی تاریخ مذہبی اقلیتوں پر ظلم و جبر اور ریاستی دہشت گردی سے عبارت ہے. بی جے پی ہو یا کانگریس، سب ہندوستان کو ہندوؤں کی جاگیر ہی گردانتے ہیں. مسلمان، سکھ، مسیحی، جین، بدھ اور دلت غرض تمام اقلیتوں پر عرصہ حیات تنگ ہے. اس تلخ حقیقت کی ایک زندہ مثال امرتسر میں سکھوں کے مقدس مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل پر تقریباً 4 دہائیاں قبل ہندوستانی ٹڈی دل فوج کی ٹینکوں سمیت چڑھائی ہے. 6 جون 1984 وہ دن تھا جب بھارت نے خالستان تحریک کو کچلنے کی حد تر مقدور کوشش میں سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل کی حرمت کو پامال کیا. انڈین آرمی نے سکھوں کے مذہبی پیشوا سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا، میجر جنرل شابیگ سنگھ اور بابا ٹھارا سنگھ سمیت دیگر رہنماؤں کو اپنی سنگینوں میں پرو دیا. سکھاں دے اوپر ادو ہور کوئی وڈی غلامی دی نشانی نہیں ہو سکتی جڑا ہن پاپ ہویا. اے سکھ اس روپ نو پسند نہیں کردے، سکھاں نو ختم کرنا چاہندے. میجر جنرل شابیگ سنگھ وہ بھارتی فوجی افسر تھے جو مکتی باہنیوں میں بیگ صاحب کے نام سے مشہور تھے. یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے بھارت کے لیے مکتی باہنی کھڑی کی، مگر آخرکار وہ بھی سمجھ گئے کہ خالستان کے قیام کے بغیر سکھوں کا کوئی مستقبل نہیں. محض ہرمندر صاحب ہی نہیں، بھارتی فوج نے صوبے بھر میں سکھوں کے دیگر 41 گرودواروں پر بھی حملہ کیا اور ہزاروں سکھوں کو ماورائے عدالت قتل کیا. بھارتی حکومت لگاتار سکھوں پر مظالم ڈھاتی رہی. سکھوں میں غم و غصہ بھرتا رہا اور اسی کے نتیجے کے طور پر 31 دسمبر 1984 کو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اپنے سکھ محافظوں کے ہاتھوں ماری گئیں. اس کے بعد 3 دن تک دلی میں بڑے پیمانے پر سکھوں کی نسل کشی کی گئی.
सितंबर 2020 में जब मोदी हुकूमत ने सिखों के मुआशी और ज़रई हकूक गस्ब करने के लिए मुतनाज़ा ज़रई कवानीन पास किए तो सिखों ने हरियाणा के जाटों के साथ मिलकर दिल्ली में तारीखी धरना दिया। 26 जनवरी 2021 को भारतीय नाम निहाद यौम जमहूरिया के मौके पर सिखों ने दिल्ली के लाल किले पर भी चढ़ाई की और भारतीय तंगा उतार फेंका और खालसा परचम लहरा दिया। लाल किले पर खालसा परचम लहराने वाले खालिस्तानी रहनुमा और तंजीम वारिस पंजाब डे के सरबराह दीप सिद्धू फरवरी 2022 में पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिए गए। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। इसी तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पंजाबी गुलूकार सिद्धू मूसेवाला को भी मौत के घाट उतार दिया। खालिस्तान तहरीक उस वक्त एक नए मोड़ में दाखिल हो गई जब अमृतपाल सिंह ने तंजीम वारिस पंजाब डे के सरबराह का ओहदा संभाला, लेकिन खालिस्तान के लिए जद्दोजहद की पादाश में वो भी अपने साथियों समेत रियासत असम की डिब्रूगढ़ जेल में पाबंदे सलासिल हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। बेशुमार सिख रहनुमा दहाइयों से भारतीय जेलों में कैद हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के मजालम सिखों के अज़्मो हौसले में कोई दरार पैदा नहीं कर सके। दुनिया भर में बसने वाले सिख खालिस्तान रेफरेंडम और तारीखी मज़ाहमत के जरिए आज भी अपनी अलहदा मुमलिकत खालिस्तान के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गुरचरण सिंह जी, ये फरमाओ कि खालिस्तान दा तकाजा करना कि वाकई गैर कानूनी सी कि जिन्हें सिखा नूं सजा दी गई। ਜਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 1980 ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ 200-400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ही रहे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस भी आते हैं। मसूद साहब, ये बताइएगा कि ये जो गोल्डन टेम्पल किया गया, क्या किसी जमहूरी मुल्क के अंदर ये सोचा भी जा सकता है कि किसी भी मजहबी मकाम के ऊपर ऐसे चढ़ाई की जाए, और वो जो मुकद्दस तरीन मकाम हो सिखों के लिए, जिस तरह उस पर चढ़ाई की गई, क्या सिखों को इसको भूल जाना चाहिए? ये ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि ये बाय डिज़ाइन ऐसा हुआ। दे वांटेड टू टीच ए लेसन कि सिखों को वो चाह रहे थे कंट्रोल कर सकें, और अनफॉर्चुनेटली आप देखें इस ऑपरेशन को जिसने लीड किया, मेजर जनरल बरार, ही वाज ए सिख। और फिर इसके बाद सब्सिक्वेंटली जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, दे सबको उन्होंने फिर वो सब्सिक्वेंटली दे वर किल्ड। तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे। और फिर देखें ये होलियस्ट शराइन है सिखों की,
और इसके अंदर टैंक्स उन्होंने, टैंकों के साथ, गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ दीवारें गिराई गई। हाँ, गिराई गई। और जो अकाल तख्त है, दैट वाज द होलीएस्ट पॉइंट जहाँ पे भिंडरवाला बैठा हुआ था, दैट उसको तो वो कहते हैं इट वाज बुलडोज्ड और उसको इट वाज रेस्ट टू द ग्राउंड। सो दे वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। और जब इस ऑपरेशन के दरमियान में थाउजेंड्स दे वर किल्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द गोल्डन टेम्पल, तो उसका एक इम्पैक्ट सिखों पे यकीनन था। वो चाह रहे थे सिखों को इस तरीके से वो कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सका। जो एक मूव जो स्टार्ट से सिखों की एक आइडेंटिटी की चल रही थी। खुशवंत सिंह ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी अपनी जो बुक है उसमें, उन्होंने जो कंपाइल किए पंजाब स्टोरीज़, तो उसमें ये लिखता है कि जो है हिंदूज गॉट हिंदुस्तान, मुस्लिम्स दे गॉट पाकिस्तान, व्हाट डिड द सिख गेट आउट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन। डिस्पाइट द फैक्ट कि 1940 में नेहरू ने प्रॉमिस किया था जब आप लोग आएंगे तो सेमी इटॉनमी हम आपको देंगे, एंड सब्सिक्वेंट इवन ब्रिटिशर्स ने दे गिव देम अ स्पेशल स्टेटस सिखों को। इनका आपने देखा, इनके सोल्जर्स थे, इनके जो बैरोक्रेट्स थे, इनके स्पेशल एक किस्म की आइडेंटिटी थी, इनके ड्रेसेस के They were allowed to wear. और रिजर्व सीट्स भी थी इनकी। सो इनकी आइडेंटिटी सिखों की पहले से अलग थी देव। लेकिन हिंदूज की एक शुरू से कोशिश रही कि उनको सिख नहीं मानते थे, दे आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। सो खालिस्तान की वन ऑफ दी जो है डिमांड है तो रिपेल जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25(2)(b, जो आज भी फिरका मानते हैं। हाँ, कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर सिख्स और वी आर डिफरेंट। और क्योंकि ये इनकी जो सोच है, या गुरु नानक ने जो सोच दी थी वो इस मोनोथीज़म पे थी कि देयर इज़ वन गॉड, और दोबारा रीबर्थ का इनका कोई कंसेप्ट नहीं था, और कास्ट सिस्टम पर इनकी बिलीव नहीं थी। सो इस सिस्टम में सो टोटली दे वर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। लेकिन वो उनको एक कंट्रोल करना चाह रहे थे। और फिर ऊपर से ये था पंजाब की बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि दिस इज द ब्रेड बास्केट जो है आप कहते हैं वो है। एंड टुडे बकेट है। हाँ, और टुडे 17 to 20% इंडियन आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं दे आर सिक्स। सो इम्पैक्ट है। और जब आपने देखा जब बैकले शाया तो फिर उनका मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने भी उनके खिलाफ बगावत की। शाहबेग सिंह का बड़ा वो इंटरेस्टिंग था। जब अभी सिडनी में जो रिसेंट जो वोटिंग हुई है तो आपने देखा होगा वो सेंटर जो है दैट इज नेम आफ्टर शाहबेग सेंटर। अच्छा। सो इट वाज नेम्ड आफ्टर मेजर जनरल शाहबेग बिकॉज ही वाज मिलिट्री एडवाइजर एंड ही रिपेंटेड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आर्मी एंड प्रेइंग फॉर देम इन बांग्लादेश। बिल्कुल, जो कुछ हुआ बांग्लादेश मुक्ति बानी के साथ हुआ। वानी साहब आप इसमें शामिल कर, क्या ये टेस्टिमनी नहीं है दुनिया के साथ कि कश्मीरी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? कश्मीरी तो ऐसी टेरिटरी है जो इंडिया से बाहर है। जो हिंदुस्तान के अंदर सिखों के साथ हो रहा है वो हिंदुस्तान को साबित करता है कि वो फाशिस्ट स्टेट है, isn't it? इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह आपने पहले भी कहा, अपने इंटरव्यू में कहा कि जो उन्होंने किया सिखों के साथ, आप देखें 1984 में जो ब्लू स्टार के नाम से उन्होंने जो ऑपरेशन किया था और सिखों के साथ जो किया था और हज़ारों सिखों को जो है मारा था उन्होंने, ये आज भी सिलसिला जारी है। मैं आपको इसी हफ्ते की जो है बुध के दिन उन्होंने जो है 36 जगहों पे जो है NIA ने छापे मारे। वजह यही है कि सिख जो उनकी तहरीक है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो इस वक्त जो सिखों की तारीख है वो हर जगह जो है इस वक्त देखे आप देखें रेफरेंडम हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, बरतानिया में हो रहे हैं। हज़ारों सिख जो है उधर वोट डाल रहे हैं कि हमें खालिस्तान के जो है वो अलग स्टेट चाहिए, सिखों की अलग शनाख्त है। तो वो यही चाहते हैं कि हमारे, इसी तरह आप देखें मकबूजा कश्मीर में कल 11 जून है, तो कल जो है श्रीनगर इसी तरह मैसेकर हुए थे, छोटा बाज़ार था और यही दिन था। और आर्मी ने जो है ना मकबूजा कश्मीर में जो है 32 लोगों को शहीद किया गया बिला वजह, इसी तरह हज़ारों को ज़ख्मी किया है। ये सिलसिला जो है जिस तरह हाँ जी, ये जो है जिस तरह सिखों के साथ हो रहा है इसी तरह मकबूजा कश्मीर में उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर जो मैसेकर्स हुए वो कहीं ज़्यादा है। जिस तरह जम्मू में आप देखें लाखों लोगों को शहीद किया गया, इसी तरह जो है मकबूजा। आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली खालसा जी के पास जाना है। खालसा जी ये दसो तुसी टुवर्ड्स द लास्ट एंड पहला सेगमेंट असीं खत्म करन लगे हैं
ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ 1980 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 70,000 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਆਈਡਲਿਸਟਿਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਚੋਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 70,000 ਸਿੱਖ ਜੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 70,000 ਚੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ, ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ CDC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ बेसिकली पाकिस्तान ने जो सिखों को वो करतारपुर तोहफे में दिया है और हिंदुस्तान ने सिखों से गोल्डन टेम्पल लिया वापस और अमृतसर के ऊपर हमला किया। इजंट इट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है जी। अगले टॉपिक की तरफ हमें बढ़ना है और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे और अमरनाथ यात्रा का मसला कि कश्मीरियों को, वहाँ पे बसने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ, सिखों के साथ, जैन के साथ, ईसाई के साथ, किसी के साथ कोई इशू नहीं है बुद्ध मत के साथ। लेकिन इंडिया का जो डेमोग्राफिक चेंज करने का एक पॉलिसी है, मंसूबा है, उसकी तहत अगर हम अमरनाथ यात्रा को देखें तो वो उसका एक कड़ी नज़र आती है। वो अमरनाथ श्राइन के हवाले से हम देख लें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से देख लें, जो वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट जिस तरीके से वहाँ के पूरे माहौल को ख़राब करने के हवाले से सही की जाती है, फिर ये मामला शुरू हो चुका है। और ये जुलाई में शुरू होगा, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो अभी जून से ही शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले जो उन्होंने काम किया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में मज़ीद इजाफा कर दिया, यानी एक और रीज़न इन्हें मिल गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के नाम के ऊपर तादाद में इजाफा करने का। इम्तियाज़ वानी साहब, इसमें आपको शामिल करूँगा। अभी मेरे सामने डिटेल आई हैं कि मई के अंदर जो इंडियन फोर्सेस ने काम किया, 10 कश्मीरियों को शहीद किया, 4 को कस्टोडी किलिंग में मारा, 57 कॉर्डन ऑपरेशंस किए, 26 हाउस डैमेज किए, 66 इंटरनेट टाइम्स सस्पेंड किया गया, 2223 लोगों को अरेस्ट किया गया है सिर्फ मई के अंदर, और
25 सिविलियन से जायद को इंजर्ड किया गया। हाउ डू यू सी दिस अमरनाथ यात्रा? अब ये क्या करने जाएंगे इस मरतबा अमरनाथ यात्रा की आड़ में? देखिए अभी जो G20 हुआ वहाँ, एक नाकाम G20 जो हुई है वहाँ पर, एक ऑलरेडी उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पर मौजूद थी। इसी हवाले से अब जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो जिस तरह आपने कहा कि G20 में तो माहौलियात पे ही जो है ना वहाँ पर वो बात की गई और उसकी तबाही के लिए अमरनाथ यात्रा है। अब अमरनाथ यात्रा वो इंडिया दोगली पॉलिसी जो चला रहा है ना, वहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा में जो कुछ होगा ना वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए एक बहुत ही सख्त जो है ना, वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ रोज़ तलाशियाँ होती हैं, लोगों को परेशान किया जाएगा। वो जो आम लोग हैं वहाँ पर, जो आम लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी का बायस है। जिस तरह वहाँ पर हम ये नहीं चाहते, ये कैसे परेशानी का बायस बन सकता है? खुद इंडिया के लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को तबाह किया जा रहा है, ये देख लीजिए आप। The major concern of the people and the environmentalists is that due to heavy rush of these pilgrims to the holy cave is that it is going to impact our water course. Our glaciers, you know, they, as per our reports, they have already squeezed by about 2.63 square kilometers, and this is our source of our water. The effect to the climate is also because of the rising temperature of the human beings. Limit the number of tourists coming to Kashmir. Kashmir is a very, very fragile area. जी आपने ये सुन लिया जी, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ ना, पहलगाम एक ऐसा एक इलाका है जहाँ पर आम लोग भी, जो टूरिस्ट आते हैं वो भी जाते, और उनकी वजह से वो भी नहीं जा सकेंगे जिस तरह है वहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा हो रहा है। आप लोगों को सप्लाईज भी तो नहीं मिलती चीज़ों की? किधर? उधर तो बिल्कुल उस वक्त जो होता है सारा कुछ बंद होता है, आर्मी ने उसको कार्डन ऑफ किया होता है, तो वहाँ पर आम कश्मीरी खाने से महरूम भी हो जाता है। हाँ, वहाँ पर जो इतना वो उनको जब जाने ही नहीं देते, इतनी सिक्योरिटी होती है, वो हर एक चीज़ से डर लगता है उनको। मगर जो एक तो मकबूजा कश्मीर के अवाम, ना कोई हिंदू से कोई मसला है, क्योंकि हिंदू वहाँ एक पंडित भी रहते हैं वहाँ पर, भाईचारे, हाँ भाईचारे के साथ रहते हैं। मगर ये जो कर रहा है इंडिया, अब उन्होंने तो हर एक को इजाज़त दी है। पहले लिमिटेड थे ये जो आते थे यात्रा के लिए, अब तो हर कोई आ रहे। डेमोग्राफिक चेंज जो आपने भी कहा वो भी अब कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इंडिया तो कोशिश कर रहे हैं कि 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को, वही मैं इसीलिए कर रहा है। वहाँ पर जो है कश्मीरियों का जो है वो जो उधर वहाँ माहौल है, वो जो भाईचारा है, वो ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्या ये वाकई रिलीजियस इवेंट है जिस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? इसका मैं दो चीज़ें मैं वुड लाइक टू टेल कि एक तो पहले ये सिक्योरिटी फोर्स की हम बात करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह ये बढ़ा रहे हैं। एक तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के उस चक्कर में दे गॉट एडिशनल 70,000 60,000 CRPF के लोग लेके आए, तो लेकिन टोटल वो कहते हैं 1,70,000 एडिशनल ट्रूप्स उन्होंने लिए थे। फिर आप देखिए 3 कोरें लगी हुई हैं, एक लेह में लगी हुई, एक श्रीनगर में, एक नगरोटा में है। और हेड कोर में कितने होते हैं? एक कोर में आप देखें ना 2 से 3 डिवीजन होते हैं। और डिवीजन में कितने? और डिवीजन में आगे 3 ब्रिगेड है, 4 ब्रिगेड डिपेंड करता है। और एक यूनिट में 700 से 800 लोग होते हैं। 800 के करीब लोग होते हैं। आप देख लें कि इन पर एक रिजर्व कोर भी है, या मादुरा में है, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से रिजर्व्स आ सकते हैं। तो एक तो है उधमपुर में इनका कमांड हेडक्वार्टर है, एक वो है। फिर आप देखें CRPF वहाँ पे है, जिसके मैंने बताया अभी 1 लाख स्ट्रेंथ है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स वाले वहाँ पे हैं। अच्छा, BSF की 1 लाख की स्ट्रेंथ है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वहाँ पे है। JNK LI वो जो होती है वो भी नहीं, वो तो उनकी यूनिट है ना। देखिए जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है, फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी है, और एक सीमा बल है। तो आप ये देखें सिविल आर्म फोर्सेज जिसे हम कहते हैं, उनके सिविलियंस काम है और फौजी साथ हैं। अच्छा, तो अभी इसमें यह है कि दिस इज द हेवीली मिलिटराइज्ड जोन, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और सिक्योरिटी फोर्सेज का जो रेशो सबसे ज़्यादा है। 6 कश्मीरियों के पीछे दिस इज 1 इंडियन सोल्जर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें क्या है। वो कह रहे हैं अभी और मंगवाएंगे। अब क्या होगा कि अब जब अमरनाथ यात्रा होगी, क्योंकि पीछे 21-22 में ये 20-21 को नहीं हुई, देन कोरोना वायरस वाला था। फिर ये है कि अब एक्चुअल स्टार्ट हुई थी, देयर वर फ्यू थाउजेंड्स जो आते थे, अब दे आर कमिंग इन मिलियंस, मतलब 500,000 मिलियन। एक उसका वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व पॉलिसी के तौर पे गवर्नमेंट की जो वो बताना चाह रहे हैं कि जी हमने वी हैव टेकन ओवर, सो हमारे हिंदूस आ सकते। तो
एज फार एज environment के रिलीजियस साथ सर क्या कर रही है? एनवायरनमेंट्स में तो तबाही है। जिस तरह भी बात हुई है कि वेस्ट वहाँ पे टन्स के हिसाब से जमा हो रहा है, उससे लैंड एयर उसका पोल्यूशन उसमें है, उसमें आपके ग्लेशियर इसके मेल्ट कर जाएंगे My God. और इसमें मतलब बहुत सारे वो है, क्योंकि जब लोग इतने लोग आके चले जाएंगे तो वहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। जो कश्मीर की जो एक पहाड़ है खूबसूरती ना, है, उसके ऊपर पहाड़ आपने है, जाना है तो ऐसे। उसका एक बड़ा सीरियस इम्पेक्ट होगा। जिस तरह यहाँ बात की फ्रिजाइल है, सो फिर ये है कि 160 किलोमीटर का रूट है। सो इमेजिन इस रूट पे जब लोग गुजरेंगे इतने, उसका कितना सीरियस इम्पैक्ट होगा। 5 से 10 लाख लोग आप 5 कह से रहे हैं 10 लाख, गुजरेंगे। जी हाँ। और दिस इज नॉट रिलीजियस, ये बेसिकली एक मैंने कहा हिंदुत्व दिस फिलॉसफी है, इज अ पॉलिटिकल थिंग। पॉलिटिकल हेड इज ए शो ऑफ फोर्स। ओके, और जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करवाना चाह रहे हैं सब्सिक्वेंटली इंडिया, ये इसी तरीके से लोग आ रहे हैं। 3.5 मिलियन के ऑलरेडी डोमिसाइल दे चुके और हैं। ये भी हमारे नजरिए को बताएं कि कई दफा क्लाउड बस्ट हो चुका हुआ है। बहुत